آپ خود مدعو کریں گے. حنیف کریم حالہ صاحب تشریف لائیں، قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمیں تلاوت قرآن کریم یہ سنی، جس کی برکتوں سے ہمیں شامل حال ہیں. یہاں باقاعدہ کوئی نعت خواں تو نہیں ہے، اس لیے سب سے بڑی نعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں درود شریف پیش کرنا ہے. آپ بھی پڑھیں، میں بھی دہراتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یہ اس کے بعد ہم باقاعدہ بلانا چاہیں گے اپنے مہمانوں کو، اور اس میں ہمارے جناب صدر ہیں معین اللہ شاہ صاحب سندھ میڈیا فورم کے. میں کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اسٹیج پر. سیکرٹری سندھ میڈیا ایسوسیشن کے وہ اب فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں سندھی چودھری صاحب، تشریف لائیں اور اپنے نشست پر. یہ تو ہمارے مہمان خاص ہیں جن کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے، جن کی تقریب پذیرائی ہے وہ پہلے سے ہی نشست پر موجود ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان کے اہل خانہ بھی یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اب یہ چاہیں گے کہ ہمارے سندھ میڈیا فورم کے طلباء کو کے جو صدر ہیں جمیل صاحب، ان کی درخواست ہے کہ وہ جلدی جانا چاہتے ہیں. وہ جو ہے تشریف لائیں. پیک کے صدر ہیں، آپ تشریف لائیں. اپنے مشہور کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. اسی کی وجہ سے بہت کچھ اہم ترین کام ہوتے ہیں. ہم سب کو جوڑ کے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. صدیق چودھری ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ افراد و مقاصد پیش کریں سندھ میڈیا فورم کے. تشریف لائیے. الحمدللہ آج ہم سب ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، جس کا مقصد اپنے ساتھیوں میں خلوص و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی اور اپنے بزرگوں و سینئرز کی عزت افزائی اور ان کی دنیا کرنا. اس سے بیڑا سندھ میڈیا فورم کے صدر معین اللہ شاہ نے 3 سال قبل اٹھایا اور اسے کراچی شہر سے اب صوبے کے تمام چھوٹے بڑے شہروں تک پھیلایا جا رہا ہے. آج سندھ میڈیا فورم نے سینئر فوٹوگرافر میرے دوست شیخ انعام کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی کا اسٹیج سجایا ہے، جو سندھ میڈیا فورم کے اہم اغراض و مقاصد کا سب سے اہم جز ہے. ہمارا بنیادی مقصد نیوز ایڈیٹرز، سب ایڈیٹرز، رپورٹرز، فوٹوگرافرز، کیمرہ مین کی حوصلہ افزائی و ایوارڈ اور اپنے سینئر اور بزرگ ساتھیوں کی عزت افزائی اور پذیرائی کی تقریبات کا انعقاد کرنا ہے. ہمارے اس اہم اور 2 نکاتی مقاصد سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام صحافی متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسائل کی بنیاد پر تو ہر ایک کسی نہ کسی وجہ سے منسلک ہے. سینئر صاحب تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سندھ میڈیا فورم کی دعوت پر نہ صرف تشریف لائے بلکہ ہماری پوری ٹیم اور بالخصوص سینئر فوٹوگرافر شیخ انعام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں جمع ہوئی. ایک مرتبہ پھر آپ سب حضرات کا شکریہ. مختصر اور مکمل بات کی مختصر الفاظ میں اغراض و مقاصد رکھے ہیں سامنے.
یہی بنیادی یہ ہے اغراض و مقاصد جس کے تحت اس فورم کو چلنا ہے. اور اس کے اب میں چاہوں گا کہ ہمارے جمیل بھائی سے ہم بات کریں. پیپ کے صدر ہیں اور جو ہے انہوں نے ہم سے کہا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے تو جلدی سے ان کو بلوا لیا جائے. میڈیا فورم کے صاحب اور سیکرٹری صاحب اور خالد اور جتنے بھی شیخ انعام کے لیے جس طریقے سے انہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے میں ان کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور بہت اپنا بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سینئر فوٹوگرافر کو شیخ انعام کو جس طریقے سے انہوں نے پذیرائی کی ہے تو میں ان کا بہت مشکور ہوں. ہمارے تقریباً جتنے بھی فوٹوگرافر ماشاء اللہ سے اپنا نشاء صاحب بیٹھے ہیں جہاز پورائے وغیرہ جتنے بھی فوٹوگرافر ہیں اور یہ شانہ بشانہ جہاں بھی آپ کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ ہم ٹیپ آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی کام ہے جس طرح سے آپ نے گھڑا اٹھایا ہے جس طریقے سے صرف اللہ کرواتا ہے اللہ کی ذات کرواتی ہے. جو کام اچھا کام ہو جائے بس اللہ کا شکر ہے کسی کام آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے. باقی سب دنیا پانی ہے ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ ہمارے ساتھ جو بھی اچھا کام ہو جائے گا جو بھی ہمارے لائق کام ہوگا ان شاء اللہ بہت شکریہ. بہت خوب. جمیل بھائی نے انتہائی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ کچھ شامل بھی ہیں متحرک بھی رہیں گے اور جو اغراض و مقاصد پیش کیے گئے ہیں صدیق چودھری صاحب نے پیش کیے گئے انہوں نے اس میں شامل حال رہیں گے. اور یہ بڑے پرعزم ہمیں ملے ہیں ہمارے ساتھی اور ہمیں اندازہ ہے کہ بہت جلدی یہ کارواں بڑھے گا اور اس کی تعداد بھی بڑھے گی اس میں توانائی اور اس کا سفر بھی جو ہے وہ جلدی طے ہوگا اور زیادہ بہتر کامیابیاں ہم حاصل کر سکیں گے. یہاں جو شخصیت ہمارے سامنے ہے ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا ہے اور مختار بھائی جی کہتے ہیں کون نہیں جانتا ان کو تو میں ان کو کہوں گا کہ یہاں تشریف لائیں. آج جو ہے سندھ میڈیا فورم کے پلیٹ فارم سے اپنے جذبات کا اظہار کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے اغراض و مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا تعلق کراچی یونین آف جرنلسٹ پٹنہ سے اور میں اس کی گورننگ باڈی کا ایک گروپ ہوں. پٹنہ سے ہماری وابستگیاں ہیں یقیناً منڈا شاہ صاحب کی بھی وابستگی اسی پٹنہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں منڈا شاہ صاحب نے کراچی رپورٹر فورم کے نام پر ایک اچھا قدم اٹھایا. کئی سینئر لوگ جنہیں نظر انداز کیا جا رہا تھا انہیں باقاعدہ طور پر پذیرائی کی. یہاں کئی تقریبات ہوئی اور آج انہوں نے انعام شیخ صاحب جو کہ ایک بڑے فوٹوگرافر ان کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اور باقاعدہ طور پر ان کی پذیرائی کے لیے انہیں عمل کیا. جہاں تک انعام شیخ صاحب کا تعلق ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پہلے یعنی کہ زیادہ پہلے نہیں 20 یا 25 سال پہلے کی بات ہے. میں روزنامہ صاحب جو کہ ایک بڑا بات ہے میں الحمدللہ اس میں چیف رپورٹر رہا اور انعام شیخ صاحب اس میں چیف فوٹوگرافر. اور یہ وہ دور تھا یہ مارا ماری کا دور تھا اور اس مارا ماری کے دور میں انہوں نے جس طریقے سے جس انداز سے کام کیا جس کے لیے میں جتنا سلام پیش کروں وہ کم ہے. انعام شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں آج لوگ ڈیجیٹل کیمرے لے کر آ گئے اور وہ اپنے آپ کو فوٹوگرافرز کہتے ہیں مگر یہ مینول فوٹوگرافرز تھے. اور ان فوٹوگرافرز کا کارنامہ یہ تھا کہ باقاعدہ طور پر محاذوں پہ جنگ بھی لڑتے تھے. یہ محاذوں پر جنگ لڑ کر جب واپس آتے تو اس کو باقاعدہ ڈیولپ کرتے ریلوں کو اور اس کے بعد اس کی فلم بنتی اور اس کے بعد پھر بات چھپنے کا پروسیس ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں انعام شیخ صاحب کو بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پر اشوک دور میں کام کیا اور ان کا یہ کارنامہ بھی کم نہیں کہ انہوں نے کئی اخبارات میں کام کیا لیکن روزنامہ ساز سے ایک طویل عرصے تک وابستگی رکھی اور کام کرتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے
उनके काम के हवाले से उन्हें जितना भी खराज तहसीन पेश करे कम है। तो इनाम शेख साहब को एक शुभ सलाम पेश करता हूँ और शुभ सलाम पेश करके चाहता हूँ। वाह मुख्तार भाई, आपकी खिदमत तो मुस्तरद है और ये एजाज़ हासिल है कि बहुत ही सीनियर लोग भी आपके साथ काम कर चुके हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नाम आता है। दूसरी ये है कि अभी मुझे हुक्म हुआ है कि ट्रैक के नायब सदर हैं सईद लाशारी साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और जो है कुछ अल्फाज यहाँ बताएँ ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। सईद लाशारी साहब। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सिंध मीडिया फोरम के जो रुए रमा हैं शाह साहब, सिद्दीक चौधरी साहब, बाकी दीगर जो दोस्त बैठे हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा आगाज़ किया है। अच्छा आगाज़ इसलिए किया है कि उन्होंने एक बहादुर फोटोग्राफर के साथ एक बहादुर इंसान के एजाज़ में एक तकरीब का हमारे लिए खुशी का बायस है और मैं दुआ करूँ कि ये फोरम इंशाल्लाह इसी तरह अपना काम करता रहेगा। शेख इनाम साहब के बारे में क्या अल्फाज कहे जाएँ, समझ से बाहर है। शेख इनाम साहब वो बहादुर इंसान है जिसने अपनी बीमारी को कभी भी सामने नहीं रखा। वो बीमारी के साथ साथ अपने काम को भी चलाते रहे और इस तरह बहादुरी से काम किया कि मेरे ख्याल से उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो जितनी तालियां हो सके एक दफ़ा मैं सबसे गुजारिश करूँगा। और दूसरी एक मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, 2002 के जनरल इलेक्शन थे और मैं इस फील्ड में नया हूँ, मुझे पता नहीं था किस तरह काम करना है, किस तरह फोटोग्राफी करनी है। तो मैं जो है वो गनसोट पे एक पोलिंग स्टेशन था, वहाँ चला गया। वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग वगैरह हुई थी। तो वहाँ जब मैं काम कर के वापस आ रहा था तो कुछ लोगों ने मेरा रास्ता रोका। मुझे पता नहीं चला कि एक दबंग स्टाइल में आदमी आया और उसने मुझे रोकने वाले का हाथ पकड़ा और उससे धक्का दिया कि इसे हटा दो। मैं जानता नहीं था ये कौन आदमी है। मुझे बाद में पता चला कि वो शेख इनाम साहब फोटोग्राफर को पिटने से बचाया। अगर नहीं बचाते तो शायद मैं भी नामालूम हूँ कि आपको पिट जाता। तो इसलिए शाह साहब, सिद्दीक चौधरी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मैं दुआ करूँ कि आपका ये फोरम आगे चल के बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। खुशी की बात ये है कि यहाँ लगी नहीं रखी जा रही, जो कोई तरीके जज्बात हैं उसका इजहार किया जा रहा है। इससे हिम्मत अफजाई भी होती है, हौसला अफजाई की वजह से ये लगता है कि हम जुड़कर जो हमने मकासद तय किए हैं उस पर हम सफ़र कर सकेंगे और मंजिल पर पहुँच सकेंगे जो लोगों की खिदमत पर मबनी है। यहाँ आसिफ जी है, आसिफ जिएजा हाँ जिएगा और हम भी जिए। अच्छा, तो मैं ये चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएं यहाँ और कुछ अपने अल्फाज से हमें नवाजें ताकि हमारे जज्बे में इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। नाम नहीं बेहतर तौर पर तर्जुमानी कर रहे हैं। जो हमारा मकसद है उसके मुताबिक ये कहें कि जो हमने ये मेरे से नाराज है किया है किस तरह आगे हम बढ़ा सकते हैं। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम तस्लीमा अलैहि। पहले तो मैं सिंध मीडिया फोरम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शेख इनाम साहब के एजाज़ में तकरीर रखी। हम चाहते हैं कि लोगों को उसकी ज़िंदगी में इज़्ज़त मिल जाए ना कि मरने के बाद। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, पूरी टीम को, शाह साहब को और जितने दोस्त हैं इनके।
और मुझसे हो तो रसूल लाल जैसी है। वाह वाह शेख नाम भाई। एक नाम मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और जब शुरू में ये आए थे तो मेरी मुलाकात ठीक है सर ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक या आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। जब शेख इनाम काम पर आए तो कुछ मामला हो गए थे तो उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आप देखें इसको। बहरहाल ये सफ़र इनका चलता रहा। फिर ये उम्मत अखबार में जब गए तो सईद खान मरूम हुआ करते थे हमारे फोटोग्राफर, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो बहुत ज़्यादा इनसे बदतमीजी से बिहेवियर और बात करते थे, मगर मैंने देखा है शेख साहब की गर्दन जैसे अभी नीचे है ऐसे ही नीचे होती थी और कभी उन्होंने उनको पलट कर जवाब नहीं दिया और वो ये कहते थे मेरा उस्ताद। तो मैं समझता हूँ आज जो शेख इनाम ने कमाया है तो वो उस्ताद ने भले कुछ भी कहा ये बड़ी बात होती है कि कोई किसी की इज्जत करे, वरना आप समझते हैं कि अगर कोई ऊंची आवाज में भी बात कर लेता तो आज लोग गिरबान पकड़ लेते। तो इसका बड़ापन है कि इसने उनकी बहुत इज्जत की और जब वो बहुत बीमार हो, इस हद तक बीमार हो गए कि वो काम नहीं कर पाते थे, तो ये रोजाना उनके बाद अस्पताल जाता था और कहता था उस्ताद आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह मौजूद हूँ और आप जैसे पहले थे ऐसे ही अभी भी। बहरहाल वो जब उस दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद उनकी फैमिली को इसी आदमी ने, रफ़ीक अफगान साहब उनके एडिटर हुआ करते थे, और उनसे कह के उनके जो तनख्वाह थी वो मुझे नहीं पता अब तक जारी हो गया, कई बरसों तक जारी थी और खुद शेख इनाम उसको टेक ओवर किया करता था, मुझसे भी मशवरा करता था। तो ये बड़ी बात थी। आज शेख इनाम के साथ जो कुछ भी है, शेख इनाम ने जो सफ़र किया है वो एक बहुत तवील है। इसकी जो तकलीफ थी मेरे ख्याल से मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर इसका बड़ापन है। अल्लाह इसको और हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत दे और इसके बच्चों पे इसका साया कायम रहे। लेकिन मेरी तो ये दुआ है और उसको सलामत रखे अल्लाह पाक। इसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मजदूरी की और कोई ऐसा काम नहीं किया कि अगर ऐसा किया होता तो आज मेरे ख्याल से इसके बाद बहुत कुछ होता और ये बना भी सकता था, कोई मुश्किल नहीं था। तो आज कल लोग शॉर्टकट में ये बहुत पहले शॉर्टकट लगा चुका होगा, उसने कभी कोई शॉर्टकट नहीं मारा, उसने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक मुकाम हासिल किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज जो इसको एजाज़ आपने दिया है वो हमें प्रेस क्लब को भी देना चाहिए और लोगों को भी देना चाहिए। ये कोई जगह मेंबर है उसको भी देना चाहिए, कई जगहों को भी ये सोचना चाहिए। मगर बहरहाल वक्त आएगा इंशाल्लाह। देखें बात रह जाती है, वक्त गुजर जाता है, तो इंशाल्लाह ये बात रह जाएगी और वक्त गुजर जाएगा। हर इंसान वक्त का इंतज़ार करता है, हम भी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वक्त एक जैसा नहीं रहता, इंशाल्लाह ताला बदलता ज़रूर है और अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर किसी को एक बार नहीं, मैं समझता हूँ बार बार मौका देता है और जब वो देता है तो जो अब उसका ज़र्फ होता है लेने वाले का कि वो किस तरीके से निभाता है। मगर मैं यहाँ पे मौजूद शाह साहब को जितने दोस्त हैं वो मुबारकबाद देता हूँ। मैं अपने दोस्तों को शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया से कुछ नहीं होता क्योंकि शुक्रिया तो सबने अदा करते हैं। जितना इन्होंने मेरी इज्जत की है मैं नहीं सकता, इतनी मोहब्बत दी है मुझे और उससे ज़्यादा मोहब्बत दी है। और जो भी फोरम का काम होगा मैं ऐलान करता हूँ, जो भी फोरम का काम होगा मेडिकल में ज़्यादा मैं करता हूँ। मेडिकल के अंदर इलाज कराना और ये सरमादारी करनी उसमें मैं बाकी और के अंदर मुझे ऑर्डर दे दें कारकुन का, जो कारकुन काम करते हैं वो मैं इंशाल्लाह करूँगा। जो भी मेरे फर्म पड़ेगा कि आपने ये करना है मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारे 24
वही साहब का एक गाना मुझे याद दिलाता है। हम होटलों में छापे पड़ रहे हैं, जिसमें मैं नहीं जाता था छापे मारने, वहाँ का से पैसे ले लिए। जो इस आपने पैसे मैं कोई आपने पूछा नहीं कि कहाँ से नहीं, क्या कितने में टाटा वाला कर दे रहा हूँ मैं वापस लेकर हमारे सीनियर बैठे हैं लड़के, हमारे कंपनी का मैं तो लड़का कहूँगा ना इनका जो मेरे साथ ताल्लुक रहा है वो ऐसा रहा है कि मुझे ये एक लम्हा बताने से ऐसा करना है। मैं इस सीढ़ी पे चढ़ता गया, ये मुझे चढ़ा गया। और मैं आप लोगों का मशहूर हूँ कि आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी मुझे, बहुत इज्जत दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस बीमारी में इस मामला में भी इज्जत दी जाती है। कोई लालच नहीं है कि इज्जत दी जाती है। मैं अल्लाह का दुआ कहूँगा कि अल्लाह इस कौम को और हमारे मैं दुआ करता हूँ साथियों के लिए, क्योंकि साथी मेरा के बहुत परेशान है बातों से, मैं बड़ी दुआ करता हूँ कि यार दूसरों की दुआ करोगे ना तो अल्लाह ऑटोमेटिकली हमारे नहीं पता चलता है। तो कोई भी काम होगा मेरा रात को आधी रात को फोन करेंगे, मैं हाजिर हूँ। मेरा बेटा मुझे मैं गाड़ी तो नहीं चला सकता, मेरा बेटा चला के लेके जाता है। मेरा बेटा मेरा बेटा पे और बाकी अल्लाह का शुक्र है। बेगम मेरे साथ है, मेरी बच्ची की शादी के लिए फैसला नहीं करी है, मैंने बच्ची की शादी बैठी हूँ। बहुत मेहरबानी आप लोगों सबको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिंध मीडिया फोरम ने सीनियर फोटोग्राफर शेख इनाम साहब की तकरीब पैदाई कर दिगर जो इस वक्त फोटोग्राफर्स सहाफ़ी जो इस वक्त अदालत में हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह आइंदा इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करते रहेंगे। और इसके अंदर तमाम हमारी सिंध मीडिया फोरम की टीम ने जो काम अंजाम दिया है वो काबिल तहसीन है। और तमाम जो लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने जो हमारी तकरीब में शिरकत कर जो हमारी हौसला अफजाई की है वो हमारे लिए बाइक से तकलीफ है। बहुत शुक्रिया। मैं आज बहुत मशहूर हूँ सिंध मीडिया फोरम का कि उन्होंने हमारे सीनियर दोस्त शेख इनाम भाई के लिए की तकलीफ सजाई। तकलीफ तो ये हम लोगों को सजानी चाहिए। शेख इनाम है कौन? शेख इनाम मेरे पड़ोसी है और जो इनका ऑफिस है वो भी मेरे पड़ोस में। शेख इनाम साहब को मैंने करीब से देखा कि एक बहुत सीनियर फोटोग्राफर थे सैयद अख्तर। तो ये उनके डायलिसिस के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड जाते थे। तो मैं और आसिफ भाई अक्सर जिक्र करते थे कि यार शेख इनाम भाई जो कोई भी जिसको जानते हैं उनको भी, जिनको नहीं जानते उनके लिए ये जाते थे। जब भी पैर पे इलेक्शन या कलर पे इलेक्शन होता था तो मैं आसिफ जीजा और हमारे ग्रुप के दूसरे लोग हम सबसे पहले शेख इनाम भाई होगा एक भाई मसला थे। शेख भाई का एक ही जवाब होता था, मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह ने हमारा और इनका रिश्ता दोस्तों जैसा रखा और इन्होंने बेशुमार फोटोग्राफरों को आगे बढ़ा, उनके नाम लेना नहीं चाह रहा, उनको प्रमोट किया और उनको आगे बढ़ा के खुश होते थे। मैं दुबई में था और एक कराची की बड़ी तकलीफ जो थी, उनके रहनुमा ने मुझसे कहा कि कराची में आज उम्मत अखबार में एक ऐसी तस्वीर छपी है जिसमें कुर्सियाँ कम दिखाई दी।
ये शेख इनाम साहब कौन? मैंने उनसे कहा शेख इनाम साहब जो हैं वो मेरे पड़ोसी हैं, वो वहाँ के जो इंचार्ज है और वो इनका दोस्त है। उनकी दफ्तर की पॉलिसी जो वो पूरे दफ्तर की पॉलिसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते आदमी लोगों को है। उन्होंने बहुत पूछा मुझसे, उन्होंने तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि आप ये देखें कि दुबई जैसे शहर में शेख इनाम साहब का जिक्र हुआ, नेक मोहम्मद साहब से, उसका एक आमिर तकी साहब से। तो मैंने उनको जब ये बात बताई, वो कराची आए, कराची आके उन्होंने बताया कि भाई वो शेख इनाम साहब की पॉजिटिव बात थी। अच्छा, उस वक्त तक बिल्कुल माशाल्लाह ये बिल्कुल डट के काम कर रहे थे, दिमाग नहीं थे। तो मैं मोहिल्ला साहब को, उनकी पूरी टीम को, खास तौर पे शकील जगी साहब और खालिद भाई का मशहूर हूँ, इन दोनों ने मुझसे कहा आपने आना, मैं तो हाजिर हूँ। और आज एक चीज़ का मैं भी ऐलान कर देता हूँ, मेरे और आसिफ चीज़ा की जानिब से इंशाअल्लाह क्लब की टेरिस पे भी हम क्लब के मेंबर हैं, हम आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और जो तकरीर आपने सजाई है कोशिश करेंगे ऐसी ही तकरीर हम भी सजाएं दोस्त मिलकर। दोस्तों, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपने साथ वालों को मुश्किल में देखकर उनकी फिक्र करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका जिक्र करते हैं और उनकी अच्छाइयों को उनकी जिंदगी में बयान करते हैं। शेख इनाम एक बहादुर, मेहनती, जफाकश और एक बयानकार फोटो जर्नलिस्ट, जिसने उस जमाने में एक ऐसे अखबार में अपनी मिसाल बनाई कि जिस अखबार से वाबस्ता होना, जिसे कहते हैं कि खौफ और दहशत के आलम में जिंदा रहने के बाद रोज़ाना उम्मत में काम करना कोई आसान बात नहीं, हर दो तरह से। रोज़नामा उम्मत में काम करने वालों को शहर के समाजी नाहंजार लोगों से भी खतरा था और शहर के सियासी नाहंजार लोगों से भी खतरा था, लेकिन बहादुरी और अजीमियत की दास्तान ठीक है, अखबार के अंदर जो कुछ जिसे कहना चाहिए कि सेठ कल्चर है, उससे भुगतने की दास्तान एक अलग है। लेकिन ये जो आपकी फील्ड के, आपकी बरादरी के लोग हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपको तनहा नहीं छोड़ा। और ये जो सिंध जर्नलिस्ट फोरम है, इनके हम शुक्रगुजार हैं और इन्हीं के नहीं, हर उस फोरम के, हर उस ग्रुप के, हर उस यूनियन के, हर उस ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के हम शुक्रगुजार हैं जो अपने लोगों का मुश्किल हालात में ख्याल रखे। बात कह के ख्याल रख सकता है तो बात कह के ख्याल रखे, जो मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़ा हो सकता है तो मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। शेख इनाम साहब, आप इस लिहाज से बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अजला अता फरमाए कि आपके दोस्तों ने आपका इतना ख्याल रखा। अल्लाह ताला से इल्तिमास है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको सेहत कामिला अता फरमाए और आप भी दुआ करें कि जो दोस्त आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो लोग मर्ज के आलम में दुआ मांगते हैं उनकी दुआ उनके दोस्तों के लिए बहुत मुफीद है। बहुत शेख इनाम साहब को सीनियर फोटोग्राफर है, हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और साथ ही साथ हमारे खानदान साहब और
नौकारी साहब मौजूद हैं, हमारे सदर साहब मौजूद हैं, केपी साहब, सिद्दीक चौधरी साहब वेट करें जो आपको शेख इनाम साहब को अजरक पेश कर रहे हैं। जनाब आजाद। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे सदर हैं मीडिया फोरम के मोइनुल्लाह शाह साहब बगैर किसी तमीज़ के हम उन्हें बुलाते हैं और वो जो है वो आपसे बात करेंगे। मोइनुल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बुल आलमीन के नाम से जो पूरी कायनात का पालनहार है, और तमाम दुरूद व सलाम उस मौलाए कुल खत्म रसूल पर कि जिसने वफ़ार राह में बख्शा फरोग़ वाक़िए से। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे एक बड़े सीनियर एज खानदादा साहब मेरे सामने बैठे हैं स्टेज पर, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके सामने कुछ शायरी करूँ, लेकिन ये तकाज़ा है फोरम का, तंजीम का, किसी भी एसोसिएशन का, कि वहाँ पर फिर उसकी तंजीम से मुताल्लिक़ कुछ न कुछ बताना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पिछले 3 साल पहले, 4 साल पहले, और इससे बहुत पहले अगर चले जाएं तो एक ज़माने में अमन अखबार के हमारे एक साथी शाह हुसैन साहब, मैं उस ज़माने में उनसे कहता था, ये 20 साल कबल की बात है, कि क्राइम रिपोर्टर अखबार की रीढ़ की हड्डी होता है और सारे काम में सबसे आगे होता है। तो ऐसा काम किया जाए कि क्राइम रिपोर्टर एक अवार्ड कमेटी बना ली जाए और उनके अच्छे काम पर उन्हें अवार्ड दिया जाए। तो मुझसे कहते थे कि चलो किसी वक्त बैठेंगे तो इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन वो आई नहीं, बात हो गई और वो सिलसिला दिल में रह गया। तो एक वक्त आया 3-4 साल कबल, मैंने सोचा कि देखें हर शोबे से मुताल्लिक़ जो भी तंजीमें हैं, चाहे वो स्टेज फिल्म का हो या किसी मजदूर तंजीम का हो या कोई समाजी इदारा हो, हर शोबे से मुताल्लिक़ स्टेज चलता है और उनके लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। वाहिद एक शोबे सहाफ़त है, आसान है, वाहिद शोबे सहाफ़त है जहाँ किसी की हौसला अफजाई नहीं देखने में आती। हो सकता है कि मैं मेरे इल्म में ना हो और मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुशाहिदे में है। लिहाजा ऐसा कोई स्टेज सजना चाहिए। अखबार के दफ्तरों में बैठ कर जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे अखबार की खूबसूरती पैदा होती है, यानी कि वो सभी एडिटर और एडिटर अंदाज वो सब कुछ उसको निखारते हैं, उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं करता। जो रिपोर्टर हैं, फोटोग्राफर्स हैं और चैनल्स के बाद कैमरा मैन्स हैं, ये पूरी फील्ड जो है वो बिल्कुल सबसे आगे होती है हर चीज़ में, उनकी भी हौसला अफजाई नहीं होती। तो लिहाजा ऐसा कोई स्टेज सजना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजार दी है और बड़ा नाम कमाया है, वो बैठे होते हैं और हम नए लोग जो हैं उनको पहचानते नहीं, उनके सामने से गुजर जाते हैं, उनको सलाम भी नहीं करते। लिहाजा उनकी शनाख्त, उनकी इज्जत अफजाई, उनकी पसीराई का भी स्टेज सजना चाहिए। ये इरादा किया और 3 साल पहले अदालत के प्रोग्राम से सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर फोरम की बुनियाद रखी, वो सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे कुछ दोस्त जो मीरपुर खास में हैं, आगा में हैं, मटियारी में हैं, धारों में हैं, ठट्ठा में हैं, दीगर शहर के सिंध के शहरों में, उनकी तरफ से भी ये मुझे बार बार एक मैसेज मिलता था कि आप इसको महदूद क्यों कर रहे हैं, इसको बढ़ाएं। मैंने कहा सिर्फ अगर मैं कोई भी काम करूँगा तो चूँकि हम जिस भी यूजे से ताल्लुक़ रखते हैं मसाइल की बुनियाद पे, हम उनके कारकुन हैं और उनके पीछे पीछे अपने कायदे से शान बशाना है।
لیکن صرف ان دو بنیادوں پہ کہ ہمارے سینئرز کی پذیرائی و عزت افزائی ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں رپورٹر، فوٹوگرافر، کیمرہ مین، سب ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹر، ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی ایوارڈ کی بھی تقریب ہو۔ اور سب سے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی اور جنہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے اس تقریب کے انعقاد میں، خالد خان صاحب، وہ بھی جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور ہمارے جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں اور ایک ویب سائٹ بھی ان کی ہے جناب اسد اللہ خان صاحب، وہ بھی جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ عبدالستار بستر صاحب، ان کا نام پریس کلب میں زیادہ لوگ جانتے ہوں گے، اور عبدالستار بستر صاحب، ان کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ انٹیریئر آج صبح روانہ ہوئے ہیں، کل تک سارے پروگرام کی تیاری میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے رابطہ سیکرٹری ہیں۔ اسلم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں درمیان میں، یہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور شیخ محمد رمضان صاحب جو عقب میں بیٹھے ہیں فائنانس سیکرٹری ہیں۔ یہ پوری ٹیم ہے۔ آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، افراد و مقاصد سے تو کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں؟ تشریف لائیے نعمت اللہ خان صاحب۔ میرا نام نعمت اللہ بخاری ہے، خان نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور یہ جو بوڑھا سا شخص نظر آ رہا ہے آپ کو، انعام، یہ ہمارا بچہ ہے، اور اس نے اپنی صحافت کا آغاز میرے پاس کیا ہے۔ پہلا اخبار اس کا اساس تھا، اور آج یہ میرا بزرگ نظر آتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے اور اس کی بیماری سے اس کو نجات دلائے اور اس کو سدا خوشیاں دے۔ میں اس کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ یہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا اور محبتوں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اس کو اگر ہم مسلسل اسائنمنٹ پر رکھتے تھے تو یہ کبھی شکوہ نہیں کرتا تو، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی اسی محنت اور ہمت کی وجہ سے اس نے اپنے لیے ایک مقام بنایا اور امت جیسے اور اس کو اس کے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اور ہم سب کے سامنے جو ہے نا یہ شخص جو ہے کامیاب و کامران رہے۔ میری یہی دعا ہے، اللہ رب العزت کرم کرے۔ السلام علیکم۔